I welcome all of you here in this session of MCQ series of Ecology, Environment and Biodiversity. So question number 1 for today's session is, what is the biggest source of pollution in the world? बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इस टाइम पे क्या है? सबसे ज़्यादा जो सोर्स है पोल्यूशन का, सीवेज एंड गार्बेज, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिसिटी, herbicide and insecticide, industrial tributaries. And yes, the right answer is option A. Sewage and garbage. Environmental pollution is currently the biggest challenge facing the world today due to increase in population worldwide. The untreated sewage discharge in lakes and rivers has increased. Even the garbage has increased manifold on daily basis. This was assessed during World Water Week by United Nations Environmental Program. So option A here is the right answer. The method of soil conservation in which different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash is called. जो soil conservation के लिए एक तरीका हम अपनाते हैं जिसमें हम एक रो में एक बीज लगाते हैं, एक किस्म का क्रॉप लगाते हैं, दूसरे रो में दूसरे क्रॉप लगाते हैं, सो दैट कि ये डिफरेंट टाइप्स पे लगाते हैं, सो दैट कि जब एक तैयार होगा फिर उसके बाद दूसरा भी तैयार होगा, ज़मीन खाली नहीं रहेगी और सॉइल इरोजन नहीं होगा. उसको हम क्या बोलते हैं? जब हम अल्टरनेट रोज में डिफरेंट क्रॉप्स लगाते हैं, सो करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे. मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, रॉक डैम, टेरेस फार्मिंग. एंड यस, द राइट आंसर इज शाबाश, it is known as option B, intercropping. The method of soil conservation in which different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash is called intercropping. In intercropping, the agriculture field is utilized for growing 2 or more crops in a specific pattern. हम 2 या 2 से ज़्यादा crops हम उगा सकते हैं, ठीक है. The benefits of it are growing more types of crops per unit agricultural land and full utilization of nutrients available in field, which otherwise cannot be utilized if single crop is grown. Which of the following environmental supports the growth of mangrove swamp? मैंग्रोव स्वैम्प, ठीक है. मैंग्रोव स्वैम्प आपको पता है वो वेटलैंड्स में ही मैंग्रोव ग्रो होता है. मैंग्रोव स्वैम्प को सपोर्ट कौन सा एनवायरनमेंट करता है? टाइडल फ्लैट, मॉनसून, इक्वेटोरियल, मिक्स्ड. एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए. Tidal flat supports the growth of mangrove swamp. The combination of low tide range and a climate which supports the growth of vegetation tends to restrict the intertidal flats. A mangrove swamp is a distinct saline woodland or shrubland habitat formed by mangrove trees. They are characterized by depositional coastal environments where fine sediments collect in areas protected from high energy wave action. Basically जो मैंग्रोव्स होते हैं ना कोस्टल एरियाज में होते हैं, जैसे सुंदरबंस में मैंग्रोव्स है, गुजरात में मैंग्रोव्स है, गुजरात और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है. वो क्या होता है कि जब समंदर से लहरें आती है ना कोस्ट पे, तो फिर उसके साथ सैलाइन वाटर आता है. और ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ना ये टॉलरेंट होते हैं टू सैलाइन वाटर. अगर ऐसे बाकी किसी पेड़ पौधे पे कंटिन्यूसली सलाइन वाटर पड़ेगा तो वो सूख जाएगा, लेकिन मैंग्रोव्स आर टॉलरेंट टू सलाइन वाटर, नमकीन पानी का. और उसके साथ और न्यूट्रिएंट्स आते हैं, सेडिमेंट्स आते हैं, और उससे क्या होता है कि ये एक बैरियर भी बनता है. ये हमें बचाता है किससे? फ्लड से, ठीक है. और मैंग्रोव्स में से हमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी निकलते हैं, लिवलीहुड भी मिलता है बहुत लोगों को, रिक्रिएशन के लिए भी यूज़ होता है. सो ये आपको पता होना चाहिए. The first protocol to ban the emissions of chlorofluorocarbons in the atmosphere was made in. सबसे पहला प्रोटोकॉल जिसने क्या बैन किया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, ठीक है, CLFLCs को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को, क्योंकि ये क्या करते थे? ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करते थे, ठीक है. और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन सबसे पहले किस प्रोटोकॉल से करवाया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओसाका, जेनेवा, फ्लोरिडा. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. मॉन्ट्रियल एक सिटी है, कहाँ पे? एक जगह है कनाडा में, वहाँ पे इस प्रोटोकॉल को साइन किया गया, इसलिए इसको नाम पड़ा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. द फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन द एटमॉस्फेयर वाज मेड इन मॉन्ट्रियल. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज फर्स्ट प्रोटोकॉल टू बैन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता था? ओजोन डिप्लीशन होता था. और इट वॉज साइंड इन 14-16 सितंबर, याद रख लेना, 1987 में इसको साइन किया गया. एंड बिकेम इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 19 साइन किया गया 1987 में और इफेक्ट में आया 1989 को. और ये एक सबसे सक्सेसफुल प्रोटोकॉल रही, क्योंकि इससे जो है ओजोन होल जो है ना वो फिर कम हो गया, ख़त्म हो गया,
ठीक है, बहुत इंप्रूवमेंट आई हमारे एनवायरमेंट में. सो दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सल प्रोटोकॉल एंड वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने बैन किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को. द कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज इज, फॉरेस्ट कवर कम कैसे हुआ, उसका कॉज क्या है, रिड्यूस कैसे हुआ. एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, राइजिंग पॉपुलेशन, टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज. कॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवरेज क्या है, एग्रीकल्चर से, क्या एग्रीकल्चर की वजह से हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की वजह से हुआ, राइजिंग पॉपुलेशन की वजह से, टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज की वजह से. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी. जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा हैबिटेट के लिए जगह ज़रूरत पड़ती है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों की ओर बढ़ रहे हैं, पेड़ को काट रहे हैं और अपने घर बना रहे हैं. सो विद द राइज इन पॉपुलेशन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन आर राइजिंग एंड अवेलेबल लैंड इज श्रिंकिंग. Here much of the burnt is faced by forests as human settlements are encroaching nearby forest areas. What is the benefit of rain water storage? अगर हम रेन वाटर को स्टोर करके रखेंगे, उसका क्या बेनिफिट है. रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल, रेस्पाइट फ्रॉम फ्लड्स, रिड्यूस द स्केर्सिटी ऑफ वाटर, प्रोटेक्शन फ्रॉम सॉइल इरोजन. एंड यस द राइट आंसर इज कि ऑप्शन ए. बेसिकली बहुत सारे फायदे हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के. इवन अगर हम बोलेंगे ना, ये ऑप्शन भी इसमें सही आ जाएगा कि जो पानी की किल्लत है ना, वो भी कम हो जाएगी. लेकिन मेन इसका ये, अगर हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ना, उससे क्या हो जाएगा, अगर हम फिर रेन वाटर, जो हमने रेन वाटर सेव किया उसको हम यूज़ करेंगे, चाहे वाटरिंग द प्लांट्स, गार्डन को पानी देना, उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है ना वो बच जाएगा, वो रिचार्ज हो जाएगा. रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल इज अ बेनिफिट ऑफ रेन वाटर स्टोरेज. रेन वाटर स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. The water when stored in tanks dug in ground surface seeps through the pores and recharges the groundwater level. तो जो अगर हम स्टोरेज को हमने ज़मीन में खोदा होता है, वो बड़ी बड़ी टैंक्स को, जब वहाँ पे रेन वाटर चला जाता है, फिर वो पोर्स के थ्रू बाकी ग्राउंड वाटर को, क्योंकि देखो ये होता है ना एक लॉ कि अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ये स्टोरेज बनाई है ज़मीन में, यहाँ तक भर गया है रेन वाटर, तो अगर यहाँ पे वाटर लेवल ये है और यहाँ पे इसमें वाटर लेवल ये क्या की ओर बहेगा, यहाँ की ओर बहेगा. अगर यहाँ पे भी इतनी है, यहाँ की ओर बहेगा, तो वो अपने साइड एरियाज में रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को. ठीक है, शाबाश. अगर कोई बच्चा हमारी एनटी या सुपरवाइजर बैच में ज्वाइन करना चाहता है, हमारी बैच में रजिस्ट्रेशन चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं. When was the World Wildlife Fund founded? World Wildlife Fund WWF को कब फाउंड किया गया? 1969 में, 1992 में, 1961 में, 1965 में. And yes, the right answer is option C. World Wildlife Fund was founded on 29th April 1961 and its first office was opened on 11 September. Its headquarter is in मॉर्गिज, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, याद रख लेना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस? इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्रीऑन. एंड यस द राइट आंसर ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड. देखो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ये यूजुअली हम रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल करते थे, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने बैन किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ करने के लिए, फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज़ किया गया. ठीक है, अच्छा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, तो ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है. ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है, मतलब ये हमारे हीमोग्लोबिन में जाता है, और ये इंसान में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उस वजह से डेथ होती है. ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, CO2, ये तो नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में है, लेकिन अगर इसका जो है इंक्रीज हो जाएगा ना परसेंटेज, तो इससे क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है, सो इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक, ग्लोबल वार्मिंग इज caused by the emission of greenhouse gases. 72% of totally emitted greenhouse gas is carbon dioxide. तो जितने भी सारे ग्रीन हाउस गैस है, उनमें 72% जो है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट है. 18% मीथेन है और 9% नाइट्रस ऑक्साइड है. ठीक है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस है. कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड emissions therefore are most important cause of global warming. कार्बन डाइऑक्साइड is inevitably created by burning, like अगर हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं ना, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. अगर हम ऑयल को, नेचुरल गैस को, डीजल को, ऑर्गेनिक डीजल, ऑर्गेनिक पेट्रोल, एथेनॉल, इनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. द एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैव बीन ड्रामेटिकली इंक्रीज्ड विद इन द लास्ट 50 years एंड आर स्टिल इंक्रीजिंग ऑलमोस्ट 3% ईच ईयर. ठीक है, शाबाश. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है?
एटॉमिक एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, नेचुरल गैस, बताइए। एटॉमिक एनर्जी तो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, नेचुरल गैस भी तो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, ठीक है। थर्मल में भी यूज होता है क्या, कोल। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है ना वो रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि वो पानी से हम इस्तेमाल, जैसे हमारे रन ऑफ द रिवर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, डैम्स बनाए होते हैं, ऊपर से पानी बहता है, वो टरबाइन को पे चला जाता है, टरबाइन मूव करता है और उसी जो है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, पोटेंशियल से काइनेटिक से पोटेंशियल फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी में तब्दील होती है, टरबाइन रन होता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो yes, hydroelectric power is a renewable source of energy. It is considered a renewable energy source because water cycle is constantly renewed by the sun. क्योंकि ये इसलिए renewable source है क्योंकि ये obviously अगर हम पानी जो है समंदरों में पानी है, इतना पानी हमारे पास, सन इसको इवापोरेट करेगा, ये इवापोरेशन ऊपर चलाएगा, क्लाउड बनेगा, फिर से रेनफॉल होगा और रेनफॉल से फिर से ग्राउंड वाटर भी बनेगा, सीज में वापस पानी आएगा, ये फिर से साइकिल चलता रहेगा। तो ये रिन्यूएबल साइकिल है, इसलिए हम रिन्यूएबल, ये कॉन्स्टेंट कंटिन्यूअस साइकिल है, इसलिए ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बीइंग डैमेज्ड द मोस्ट। किस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, किस प्रोडक्ट की, और जिस वजह से हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को ज़्यादा ज़्यादा काट रहे हैं। पोक, शुगर, मीट ऑफ गोट, बीफ। एंड ऑप्शन डी, ड्यू टू ग्रोइंग डिमांड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर बीइंग डैमेज्ड द मोस्ट। इंटरनेशनल बीफ एंड ट्रेड इंडस्ट्रीज डिप्लीटिंग ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लैंड फॉर कैटल रेंचिंग बाय इंसेंटिवाइजिंग द ट्रॉपिकल नेशंस। आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट होता है बीफ का, और इस वजह से क्या होता है कि फॉरेस्ट्स को काट दिया जाता है सो दैट कि और कैटल्स के लिए हम ये उगाएं और कैटल ये किया जाए, कैटल रेंचिंग के लिए, ठीक है। द मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इन विच रॉक्स आर piled up to slow down the flow of water which prevents gullies and further soil loss is called। सॉइल इरोजन जब होता है ना तो हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं उस सॉइल को बचाने के लिए, उसको हम सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। एक तरीका है जब हम रॉक्स को एक के ऊपर रखते हैं सो दैट कि वाटर का जो फ्लो है वो रुके और गुलीज ना बने और सॉइल लॉस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम, टेरेस फॉर्मिंग। एंड यस, द राइट आंसर इज, so the right answer here is option C, rock dam is a simple approach to prevent the flow of water and prevent undercutting and erosion along the river Cranet. For example, Manilis River has split rock dam in northwestern slopes region of New South Wales in Australia, ठीक है। The world's largest biofuel plant has been established with a production capacity of 100 million liters per year is located in China, India, Brazil, USA. And yes, the right answer is option C, Brazil. The world's largest biofuel plant has been established with a production capacity of 100 million liters per year is located in Brazil. Brazil is commonly referred to as having the world's first sustainable biofuels economy, which is a misnomer given that country has never relied on ethanol to supply more than about 80% of its total energy requirements, though a 50% by volume peak was reached in the mid 1990s. As biodiversity is pretty high in tropical Brazil, hence the raw material for biofuel is easily available. क्योंकि ब्राज़ील में अमेजन फॉरेस्ट्स भी है, वहाँ पे घने जंगल है जहाँ पे रॉ मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा निकलता है, या वहाँ पे कल्टिवेशन भी इस तरह की चीज़ों को बहुत होती है, तो वहाँ पे बायोफ्यूल बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। रियो सुमिट इज एसोसिएटेड विद, जो हमने पहले कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, रियो सुमिट इज एसोसिएटेड विद कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ग्रीन हाउस गैसेज, ओजोन डिप्लीशन, वेटलैंड्स। एंड ऑप्शन ए हियर इज द राइट आंसर। अर्थ समिट ऑल्सो नोन एज रियो समिट हेल्ड इन, कहाँ पे हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था जो कि ब्राज़ील में है, 1992 में हुआ था। UNCED ने किया था इसको। अबाउट 100 हेड्स ऑफ द स्टेट्स बिकेम सिग्नेटरीज टू कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन दिस कॉन्फ्रेंस। ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए किया गया था, इसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। The method of soil conservation in the coastal and dry regions where rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover is called। अच्छा, अगर जैसे ड्राई रीजन्स में या कोस्टल रीजन्स में वहाँ पे हवाएं चल रही होती है, तेज़ हवाएं, उन विंड से, जैसे उन विंड से क्या होता है कि सॉइल कवर उठ जाता है, ऊपर वाली लेयर उठ जाती है, तो सॉइल इरोजन होता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम रोज ऑफ ट्रीज लगाते हैं, रोज में, उसको क्या बोलते हैं, मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम, शेल्टर बेल्ट्स। एंड ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर, शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स
or arrangement of trees in coastal dry regions to prevent soil erosion. The roots of trees behind the soil and prevent the removal of top layer of soil from action of water or wind. देख लेना बेटा, शेल्टर बेल्ट किसको बोलते हैं, रॉक डैम किसको बोलते हैं, कंटूर बैरियर्स और मल्चिंग, ये आपको पता होना चाहिए. These are different types of soil erosion. Got it? Okay. The radiant energy received by the earth from the sun is. The radiant energy received by the earth from the sun is radiation, insulation, reflection, refraction. So option B. जितनी भी हमारी सूरज से किरणें आती है ना और अर्थ पे पड़ती है उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं. इंसुलेशन. ठीक है. So energy received by earth is known as incoming solar radiation, which is incoming solar radiation. Obviously जो सन से आती है ना रेज उनको हम बोलते हैं incoming solar radiation, which in short is termed as insulation. इसी को हम insulation बोलते हैं. incoming solar radiation को ही insulation बोला जाता है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एज द अर्थ इज, देखो अगर आप कहीं पे भी आपको MCQs मिलेंगे, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, बट क्या आपको सच में जब आप MCQs खुद से करते हैं ना, क्या आपको दिमाग में बैठते हैं वो, क्या आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, वो मैटर करता है. ठीक है. तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन को हम इन शॉर्ट इंसुलेशन बोलते हैं. एज द अर्थ इज जॉइंड रिजेंबलिंग अ स्फीयर, द सन रेज फॉल obliquely at the top of the atmosphere and the earth intercepts a very small portion of the sun's energy. और मैंने आपको कल पढ़ाया था कितनी परसेंटेज ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी है जिसको हम फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं. यस, इट इज अराउंड 2%. सिर्फ 2% ही जो फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होती है, बाकी लीव्स से रिफ्लेक्ट बैक होती है. विच हैज द मैक्सिमम रेट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, किस जोन में सबसे ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होती है? ट्रॉपिकल जोन, डेजर्ट जोन, टेम्परेट जोन एंड नॉर्दर्न जोन. एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ट्रॉपिकल जोन. मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल काट दिए जाते हैं. मैक्सिमम डिफॉरेस्टेशन ऑकर्स इन ट्रॉपिकल जोन, मोस्टली इन अमेजन रेन फॉरेस्ट्स ड्यू टू एनिमल रेंचिंग. इक्वली 14% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एनुअल डिफॉरेस्टेशन. मतलब कि मैंने आपको अभी बोला ना कि ये जो है ना सो दैट कि वो सेटअप कर पाए उनके लिए ग्रासेस वासेस, किन के लिए? एनिमल्स के लिए, सो दैट फिर वो मीट को एक्सपोर्ट करते हैं ना, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, ये डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं. जैसे अमेजोन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा हो गई. एंड 1991 स्टडी शोज 90% ऑफ डिफॉरेस्टेड ट्रॉपिकल रीजन्स बिकमिंग फार्मर्स और रेंच लैंड. तो ये फिर फार्मर्स बनाते हैं उन पे. ठीक है. while only 10% is replanted for future timber harvests. बाकी 10% को ये थोड़ा सा फिर से पेड़ लगाते हैं सो दैट कि हमें टिम्बर मिले, वहाँ से लकड़ी मिले. बाकी 90% जो जितनी भी डिफॉरेस्टेटेड ट्रॉपिकल रीजन है उनमें फार्म लैंड्स बनते हैं, उनमें फार्मर्स बनती है, रेंच लैंड बनता है. ठीक है. एनिमल को रेंचिंग के लिए. Which of the following aquatic plant is effective in preventing the water pollution caused by industrial waste? सब जो कौन सा aquatic plant ऐसा है जो प्रिवेंट करता है वाटर पोल्यूशन को, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट से वाटर पोल्यूशन होता है? वाटर हाइसिंथ, एलिफेंट ग्रास, पार्थेनियम, B and C. And yes, the right answer is option A, water hyacinth. Aquatic plant water hyacinth is effective in preventing the water pollution caused by industrial waste. Water hyacinth multiplies rapidly in polluted environments and easily scavenges some inorganic and organic compounds from water. So this is दिस इज एंड ऑफ पीडिया. बट यू नो जो वाटर हाइसिंथ होता है ना, ये आप बोलोगे कि ये वाटर पोल्यूशन को कैसे दूर करता है, क्योंकि ये जो है ना ये एब्जॉर्ब करता है लॉट ऑफ फॉस्फोरस और नाइट्रोजन. जो हमारा कंटेमिनेटेड वाटर होता है ना टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल से जो पोल्यूट हुआ होता है, उससे फॉस्फोरस और नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करता है, जिस वजह से फिर क्या होता है, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंट होता है. तो दिस इज एंड ऑफ PDF. आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है. इक्वालिटी, एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी हम कंप्लीट करेंगे MCQs के थ्रू. हर एक जो टॉपिक है, हर एक कॉन्सेप्ट है, इसमें डिस्कस किया जाएगा. एंड बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट. इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर बैच ऑफ एंटी बैच एंड सुपरवाइजर बैच, यू कैन ज्वाइन दैट by downloading WS Academy app. So I wish you all the best. Take very good care of yourself.